میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، میرا اللہ اس کائنات کو بنانے والا ہے اور اس زمین آسمان پر حکومت کرنے والا ہے. ہر جاندار پر بھی اس کا ہی راج ہے، بے جان پر بھی اللہ ہی کا راج ہے. دوڑنے والے پر اللہ کی حکومت، چلنے والے پر اللہ کی حکومت، رینگنے والوں پر اللہ کی حکومت، اور ڈسنے والوں پر، پھنکارنے والوں پر، چنگھاڑنے والوں پر، اور جتنی مخلوقات ہیں اس ساری کائنات کے اندر سب پر میرے اللہ کی حکومت ہے. اور یہ انسان کو بھی کہتا ہے کہ اے انسان، تو یہ مت سمجھ کہ تیرے اوپر کوئی حکمران نہیں ہے. ہاں میں ہی ہوں وہ خدا، میں ہی ہوں وہ اللہ، میں ہی وہ شہنشاہ، شاہان شاہ جو تمہارے اوپر حکومت کرتا ہوں. تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں کہ تم ایک نوالا منہ میں ڈال کر پیٹ میں لے جا کر اس کو غذا بنا کر، گندگی بنا کر اور پیشاب پخانہ بنا کر تو کچھ کر نہیں سکتا. یہ تیرا اللہ کا نظام چلتا ہے. تیرے پیٹ کے اندر کروڑ نظام جو چلتا ہے، فیکٹریاں حرکت جو کرتی ہے، تب جا کر وہ غذا سے گندگی سے خون سے پیشاب، پھر پخانہ بن کر خون اپنے جگہ پر، گندگی اپنی جگہ پر، پیشاب اپنی جگہ پر، پخانہ اپنی جگہ پر جا کے پہنچتا ہے. تو سوچ کہ تیرا اللہ کتنا بڑا ہے. یہ تبلیغ والوں کا ایک ہی نعرہ، ایک ہی صدا، ایک ہی پکار ہوتا ہے کہ اللہ سے ہوتا ہے، کسی سے کچھ نہیں ہوتا ہے. یہ تبلیغ والوں کے اندر اللہ کی وحدانیت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی طاقت، اللہ کی شہنشاہی، اللہ کی قدرت، اللہ کی ذات کا یقین ان کے دلوں کے اندر اتر گیا. تبھی تو یہ پکار، یہ صدا، یہ نغمہ، یہ نعرہ، یہ پیغام کو دیتا رہتا ہے. کیوں؟ کہ اس لیے یہ تبلیغ والوں کو پتا ہے کہ اللہ کی ذات سے ہوتا ہے، اللہ کی سوا کچھ نہیں ہوتا. ہاں ہر مسلمان جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جب پڑھتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ میں کسی اور کے آگے جھکوں گا، میں کسی اور سے مانگوں گا، میں کسی اور کو پوجوں گا، میں کسی اور سے مدد لوں گا. وہ کہتا ہے نہیں لا، کسی سے میں مانگنے والا نہیں ہوں، کسی کے سامنے میں جھکنے والا نہیں ہوں، کسی کے سامنے میں گڑ گڑنے والا نہیں ہوں، اور کسی کے سامنے میں سجدہ ریز نہیں ہوں گا. کیوں؟ کہ اس لیے کہ الا اللہ، وہ اللہ میرا خالق، میرا مالک، میرا رازق، کفا باللہ وکیلا، کفا باللہ شہیدا، کفا باللہ رقیبا، کفا باللہ حفیظا. میرا اللہ میری حفاظت کرتا ہے، میرا اللہ میری مدد کرتا ہے، میرا اللہ ہی ہے جو میرے لیے کافی ہے. کفا باللہ شہیدا، کفا بربک، کفا باللہ رقیبا. میرا اللہ میرا سب کچھ کا کرنے والا میرا اللہ ہے. میں کسی کے سامنے کیوں اپنی جھولی کو پھیلاؤں، اپنے ہاتھ کو پھیلاؤں، اپنے دامن کو پھیلاؤں؟ کیوں؟ جب میرا اللہ اتنا بڑا شہنشاہ ہے، وہ شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. میری شہرت سے آپ لوگوں کی شہرت کی زیادہ قریب میرا اللہ ہے. اسی وقت جب میرا اللہ، دیکھو اللہ ہر جگہ ہے لیکن جگہ کا محتاج نہیں، زمان و مکان کا محتاج نہیں. لا تخالطہ الدنون، لا تراہ العیون. میں سوچوں کہ میرا اللہ ہے تو کدھر ہے، تو خیال کی رفتار اتنی ہے کہ ایک سیکنڈ کے اندر آپ پوری دنیا پھر کر آ سکتے ہیں خیال کی رفتار سے. لیکن اللہ کا خیال کی گھوڑوں کو دوڑاؤ لیکن مجھ تک نہیں پہنچ پاؤ گے. میں اتنا دور ہوں اور میں اتنا قریب ہوں. اسی وقت میں دور بھی ہوں، قریب بھی ہوں. تو بتاؤ سواء منکم من اسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنهار. ان چوروں کو بتاؤ، ان
लुटेरों को बताओ, इन बदमाशों को बताओ, इन जालिमों को बताओ, इन कज़्ज़ाब को बताओ, इन मक्कारों को बताओ, इन दीवानों को बताओ, इन शराबियों को बताओ और इन बदमाशों को बताओ कि तेरी हरकतों से तेरा अल्लाह गाफिल नहीं है। ला तहसबन्ना अल्लाह गाफिला अम्मा यअमलु ज़ालिमून। मेरा अल्लाह दिन रात सुबह शाम और हर वक्त तेरा साथ तेरा अल्लाह है। तू सोचे कि मैं 1 रुपए किसी का बेईमानी करूं, अल्लाह कहता ला तहसबन्ना अल्लाह गाफिला अम्मा यअमलु ज़ालिमून ला यअज़ब अन रब्बिका मिन मिस्क़ाल ज़र्रा। ये मत समझना तुम्हारे मशीनों के अंदर अभी तुमने गेहूं धन काटे, धन को घर लाए और घर में लाकर मशीनों के अंदर उसको डाला, उसमें से बारीक बारीक जो तिनका जो उसमें निकलता है, हमें पता नहीं चलता कि तिनका उड़ के कहाँ जाता है, किस कोने पे जाता है, किस मकड़ी के जाले के अंदर फंस जाता है, किस बिल में जाता है, किस घर में जाता है, किस फिजा में जाता है, किस दरख्त में जाता है, किस जंगल में जाता है, हमें पता नहीं होता है। तेरा अल्लाह कहता है तूने जितने धन चावल जो खेतों से लाए थे वो मुझे पता है, मैं उसको गिना हुआ हूँ, मैं उसको देखता हूँ, तू उसको उठा के कहां से कहां लाया, फिर मशीनों के अंदर डाला, फिर मशीन से बाहर निकला, वो उठ के कहां पहुंचा, मेरी नजर के सामने है वो। तिनका को भी मैं देखता हूँ। तो बताओ इन बड़े जालिमों को, इन बड़े बदमाशों को वो नहीं देखता है, ये जानियों को, ये शराबियों को, ये बेईमानों को मेरा अल्लाह नहीं देखता है। मेरा अल्लाह कहता हाँ आज मैं पकड़ नहीं रहा हूं तो इसका ये मतलब नहीं है कि छूट दे रहा हूं। आज के लिए थोड़ा बहुत मैं तुम्हें मोहलत दे रहा हूं कि ताकि तुम अपनी बेईमानी से, अपनी गलत हरकतों से, अपनी नाफरमानी से तू बाज आ जाए, तौबा कर जाए और अल्लाह के दरबार में माफी तलाश कर लो तो तुम्हारी बख्शिश हो सकती है। अगर तुमने नहीं किए यही रवैया, यही हरकत तुम्हारी रहा तो फिर देखना तुम्हारा अंजाम। मैंने जहन्नम को भी बनाया है, मैंने दोज़ख को भी बनाया है, मेरी पकड़ भी है तो मेरी छोड़ भी है, मैं छोड़ता भी हूँ तो पकड़ता भी हूँ, मेरा कानून भी है, मेरी रहमत भी है। ये मत समझना हाँ रहमत की अलग बात है, लेकिन जो मैंने कानून जो लिखा है, जो मेरा संविधान है, जो मेरा आईन है, जो मैंने लॉ तुम्हारे ऊपर फिट किया है, उसको मैं यूं ही छोड़ दूंगा। अरे जालिम और मजलूम में फिर बराबरी कैसी? जालिम को अलग कर दिया जाएगा, मजलूम को अलग कर दिया जाएगा, जालिम को अलग कर दिया जाएगा और निकाहदार को अलग कर दिया जाएगा, दामदार को अलग कर दिया जाएगा और पाक को अलग कर दिया जाएगा। शराबी अलग हो जाएंगे, शरबत वाले अलग हो जाएंगे, जिना वाले अलग हो जाएंगे, निकाह वाले अलग हो जाएंगे, झूठ वाले अलग हो जाएंगे, सच वाले अलग हो जाएंगे, नाफरमान अलग हो जाएंगे, फरमाबरदार अलग हो जाएंगे, सबको पूछा जाएगा। हाँ आज बताओ ला जुल्मल यौम, आज मैं किसी पर जुल्म नहीं करूंगा। क्यों? जो नमाज पढ़ता है तो क्या मैं उसको जहन्नम में डाल दूं? जो नमाज छोड़ता है क्या मैं उसको जन्नत में डाल दूं? मेरा जो कानून है, मैं जो कानून जो लिखा है, ये कानून के ऊपर मैं अटल हूं। अटल समझते हो? अटल किसे कहते हैं? अटल ठान लिया तो ठान लिया, अब हो क्या रहेगा, अब बख्शिश कोई नहीं, छोड़ कोई नहीं, मैं जो ठान लिया तो ठान लिया। मैंने ठान लिया है कि मटियारी को हड़पना है, चाहे मेरा जमीन बिक जाए, मेरा ईमान बिक जाए, मैं खत्म हो जाऊं, मेरी जात खत्म हो जाए तो हो जाए, लेकिन मैं मटियारी को खरीदना है, मैं मटियारी को खरीदना है तो खरीदूंगा। ऐसा मेरा अल्लाह दावा करता है, ऐसा उसका कानून है। देखो अल्लाह के कानून को कोई तोड़ नहीं सकता। अल्लाह की हुदूद को अगर हमने क्रॉस किए और अल्लाह की हुदूद को तोड़कर हम आगे चले गए तो फिर हमारा अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। मेरा अल्लाह कहता है ओहो अरे दुनिया के बाशिंदे, अरे दुनिया में रहने वाले इंसान, वो कोई भी या इबादियल्लज़ीना अस्रफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह। मैं जानता हूँ कि तुम गुनहगार भी हो, खताकार भी हो, सियाकार भी हो, बदमाश
बदमाश भी हो, शराब भी पीते हो, ज़िना भी करते हो, चोरी भी करते हो, डाका भी डालते हो और बेईमानी भी करते हो, तुम्हारे अंदर जितनी नाफरमानियां उसको गिना जाए तो बड़ा सा लिस्ट बनेगा, बड़ा सा लिस्ट बनेगा। और तू सोचेगा अरे मेरा तो इतना गुनाह है, मैं किधर जाऊं? मेरा अल्लाह कहता है ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना, अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना। तुम छोड़ो फिर भी तुम मेरे ही हो, तुम बदमाश हो तो भी तुम मेरे ही हो, तुम नेक हो फिर भी तुम मेरे ही हो। जब तुम मेरे बंदा हो इब्न आदम, उतबनी तजिदनी इन वजदतनी वजदत कुल्ल शै व इन फतनी फातक कुल्ल शै। तुम अगर चाहते हो कि मेरा सारा किया कराया दुनिया का यही माफ हो जाए तो तुम क्या करो, क्या करो? वाह वाह, अल्लाह की तलब करो, अल्लाह को ढूंढो, फफिर्रू इलल्लाह। क्या समझते हो? मैं एमएलए के पीछे दो, मैं मुखिया के पीछे दो, मैं समिति के पीछे दो, मैं पीएम के डीएम के सीएम के पीछे दौड़ो? नहीं, अल्लाह का तो उसके पीछे दौड़ने से कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, कुछ वक्त के लिए मिल जाए तो मिल जाए, लेकिन फफिर्रू इलल्लाह, अल्लाह के पीछे दौड़ोगे तो क्या मिलेगा? अल्लाह मिलेगा। फफिर्रू, दौड़ो किधर? इलल्लाह, अल्लाह की तरफ। जब तुम दौड़ोगे अल्लाह की तरफ तो तुम्हें अल्लाह मिलेगा, जब अल्लाह मिलेगा तो तुम्हें सब कुछ मिलेगा, अगर अल्लाह न मिला तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। ओहो, अल्लाह ही जो जिसको मिल गया तो उसको फिर क्या चीज की टेंशन भैया है? बादशाह मिल जाए, बादशाह की सल्तनत पे थूक, बादशाह चाहिए, बादशाह मिल जाए तो बादशाह की सल्तनत मिल जाए ना, हमें मिल जाएगा ना, तो हमें अल्लाह को पाना है, अल्लाह को ढूंढना है, अल्लाह से हमें मिलना है, अल्लाह की तलब करना है। मेरा अल्लाह कहता है, क्या कहता है? ओहो फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु, कहां? सय्यिआतिहिम, इसको किधर? हसनात। क्यों? कि वकानल्लाहु गफूरर रहीमा। अगर तुम चाहते हो कि हमारे गुनाहों को माफ कर दिया जाए तो तुम एक काम करो, तुम बूढ़े हो कि मर्द हो, औरत हो कि जवान हो, फर्द हो कि कौम हो कि जमात हो, कोई भी, काले हो कि गोरे हो, तुम जो कोई भी हो तो तुम क्या करो? तौबा करो, सच्ची और पक्की। कैसी तौबा? ऐसी तौबा करो कि आइंदा इस गुनाह को मैं नहीं करूंगा, दिल से करो। कहां से? दिल से। तो मैं क्या करूंगा? तुम्हारे जितने गुनाह हुए हैं, तुमने जितने गुनाह किए थे, उन गुनाहों को मैं मिटा दूंगा, जीरो कर दूंगा। और जितने गुनाह हुए थे उनको काउंटिंग करो, गिनो, तो गिना कितने हुए थे? मेरी फॉर एग्जाम्पल मेरी उम्र 50 साल की है, इन 50 सालों के अंदर मैंने नाफरमानियां ही नाफरमानियां है मेरी, मैंने गुनाह ही गुनाह किया है। तो ये गुनाह कितने हुए? इस 50 साल जिंदगी का गुनाह कितना हुआ? अल्लाह कहते हैं इसको काउंटिंग करो, कितना हुआ? ये जितना भी हुआ है 200 करोड़, 6 अरब, 5 अरब, जितना भी हुआ है, फॉर एग्जाम्पल 5 अरब, इन 5 अरब को मिटाकर 5 अरब में मैं नेकी लिख दूंगा, 5 अरब में नेकी लिख दूंगा। अब बताओ, जब तुम्हारे 5 अरब गुनाह को मिटाकर 5 अरब नेकी लिखने पर वो कादिर है, तो फिर क्यों ना हम अल्लाह से तौबा करें? क्यों ना अल्लाह के सामने हम झुके? क्यों ना हम अल्लाह से मांगे? क्यों जाते हो किसी और के पास? क्यों जाते हो किसी ऐसे टोपी वालों के पास, किसी ऐसे और तस्बीह वालों के पास और अगरबत्ती वालों के पास, और क्या कहते हैं हमारे गांव में क्या क्या होता है, उसके पास जाते हो? अरे तुम्हारा ईमान कैसा है? किसी और से क्यों उम्मीदें लगा रहे हो? क्यों लगा के बैठे हुए हो? अरे जब अल्लाह से होता है, जब तुमने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया तो मतलब क्या है कि किसी के सामने मत झुको, चाहे वो कोई भी हो। हाँ, तुम मजबूर होना पड़े तो मजबूर होकर सर कटा देना, मगर सर को न झुकाना, सर को न झुकाना। यह है
ला इलाहा इल्लल्लाह। इसी को मैं शुरू से लेके आ रहा हूँ। तो हमें क्या करना चाहिए कि अल्लाह के सामने झुकना चाहिए, अपनी जिंदगी से तौबा करना चाहिए और नाफरमानी से निकलकर फरमाबरदारी के अंदर हमें आना चाहिए। अरे आज हमारी मस्जिद खाली खाली, ये जुमा है, आज जुमा है, आज देखो देखो तो सही, जुमा में पढ़ने वाले अभी आते, कब आते हैं? जब देखते हैं कि जमात खड़ी होने वाली है तब आते हैं, खुतबा पढ़ने वाले तब आते हैं। क्यों? वो तो बड़ा एमएलए है, वो तो यहाँ साइन करने आया है, वो सिग्नेचर देने आता है कि मैं सिग्नेचर दूंगा तो कुछ होगा। अरे तुम्हारे सिग्नेचर की कोई जरूरत नहीं, तुम आओ ना आओ, अल्लाह की तुम्हारी सब्बाह लिल्लाहि मा फिस समावात, सब्बाह लिल्लाहि मा फिस समावात। मेरा अल्लाह कहता है तुम्हारी तस्बीह की सजदों की जरूरत नहीं है, तुम पढ़ो ना पढ़ो, कोई परवाह नहीं, कोई ये नहीं है, तुम पढ़ो या ना पढ़ो, कुल कायनात तेरे रब की तस्बीह पढ़ती है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के सामने झुकना, किसी के सामने न झुकना। तो तौबा करते हो ना सब, अल्लाह तबारक व तआला हमको कहना और सुनने की तौफीक अता फरमाए।